Ma'am. Yes, Excuse me, ma'am. We are to start from page number 63, deserts. Yes, Lakshita. Lakshita, Ma'am, can I read? रीड करने के लिए तो मैंने बोला ही नहीं किसी को अभी। मैंने कहा ही नहीं रीड करने के लिए। So your books should be with you and they should be in your hand, like I say always. So who will explain what are deserts? Who will explain? Page number 63. Ma'am, which page number? 63. Subhanshu Gulati. Subhanshu. And desert has dry and hot weather. There are camel can live without water and food for many days. Yes. Yes, Subhanshu, your voice was breaking, but मुझे है कि आप क्या कहना चाहते हो? तो deserts have dry and hot climate. There is scarcity of water. पानी वहाँ पे बहुत कम मिलता है. All the plant species and animal species that live there, they rely on a very little amount of water. And they are adapted in such a way that they can survive without water for number of days. Okay, so we will start. आपको ये भी पता होगा, definitely सबको पता होगा that which animals are found in desert. Can you write animals that are commonly found in desert? Camel, yes. Any other animal? Rattlesnakes, very good. And many creatures, small creatures, many species of insects भी वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है? And a plant, some plants that are found in deserts. Plants, cactus and babool and date, palm, देवदार नहीं मिलता भाविक. Yes, aloe vera. So these are some plants that are found in desert. So what is common in these plants? There's one thing common in these plants. All of these plants have long roots. So that roots, what is the function of root? Root's function is to absorb water from soil. That water is needed by the plant to carry out photosynthesis. Okay, so function of roots is to absorb water. So all these plants have very long roots, so that roots can go deep inside the soil and absorb the water. Okay, and all the animals, camel is known as sheep of desert. Excuse me, Anu ma'am. Voice is cracking. अनु मैम आपकी आवाज ना कट रही है. There is some network issue. There can be. It's okay. I will speak slowly. Right, ma'am. Okay, ma'am. So all these animals have adapted themselves in such a way so that they can survive in the harsh conditions of desert. Okay. If we talk about camels, camel की skin कैसी है? थोड़ी पतली है. उसकी skin पे hair है जो उसको heat से बचाते हैं, ठीक है? Camel has long legs. उसकी legs बहुत लंबी है. You have already studied this in 4th standard, right? तो उसकी legs थोड़ी लंबी है ताकि जो sand से heat उठ रही है वो उसको irritate नहीं करे. It has long eyelashes ताकि dust उसकी eyes में नहीं जाए. It has hump on its back so that it can store food and water that can be used by it.
आफ्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, 6 to 7 days में अगर उसको वाटर नहीं मिलता, कैमल कैन सर्वाइव देयर। तो एनिमल्स, यहाँ पे एक फैक्ट है, जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं, वो एनिमल्स ड्यूरिंग डे टाइम दे रिमेन इनएक्टिव फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। Animals that live in desert, they remain inactive for most of the time, okay, and they are more active during night. Why so? Because during daytime there is sun, there is lot of heat in the desert, वहाँ पे temperature बहुत ज़्यादा है, and during night वहाँ पे temperature कम हो जाता है, okay, even थोड़ा ठंडा ही हो जाता है, okay. सो नाइट में वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, डे टाइम में थोड़े कम एक्टिव होते हैं। यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन दिस, दिस इज द फोर्थ लाइन इन दिस पैसेज, फोर्थ फ्रॉम द डाउन, नीचे से फोर्थ है। स्मॉल एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट्स रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। डे टाइम में बिकॉज हीट इज मोर, ठीक है, तो हमारी बॉडी से वाटर इवेपोरेट भी तो होता है, हमें कितनी स्वेटिंग होती है डे टाइम में। आज का टाइम जो है, हमें आज कितनी स्वेटिंग हो रही है, बिकॉज आज बहुत ह्यूमिड है ना, तो हमारी बॉडी से वाटर लॉस होता है। तो वाटर तो डेजर्ट में पहले ही कम है, राइट। तो एनिमल्स क्या करते हैं, क्योंकि वाटर लॉस कम से कम हो, तो जो छोटे छोटे एनिमल्स है, कैमल तो बहुत बड़ा एनिमल है, जो छोटे एनिमल्स है जैसे स्नेक्स है, कुछ इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, ये नाइट टाइम में बाहर आते हैं, डे टाइम में बाहर नहीं आते। रुचित, इट इज चैप्टर 6। ओके, इज दिस thing clear to all? Write yes in the chat box if this is clear to all. बच्चे, I'm speaking very slowly, I'm speaking very slowly, ठीक है। आपको समझ आएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे और ये मैसेजेस लिखना बंद करोगे। Excuse me, Rupinder ma'am. So the next topic is polar regions and mountains. What type of animals, how they are adapted, those animals that पोलर रीजन्स कौन से होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है। ऐसे रीजन में सारा टाइम बर्फ रहती है, 12 months ऑफ द ईयर बर्फ रहती ही रहती है, 6 month डे रहता है, 6 month नाइट रहती है इन पोलर रीजन्स, ठीक है। एंड माउंटेन्स भी बहुत ठंडे होते हैं, बिकॉज माउंटेन्स आर हायर प्लेसेस, तो हायर प्लेसेस में ज्यादा ठंड रहती है, ओके। So polar regions are, yes, Angel, very cold. Angel is answering me everything. It means she is able to listen to me. She is trying to listen to me. क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो आंसर कर रही है साथ में। Okay, so what type of animals live in polar region? जिनकी बहुत बॉडी पे थिक फर होती है, such as polar bear, ठीक है। तो पोलर बेयर है, आर्कटिक फॉक्स है, और कुछ वाटर एनिमल्स है लाइक सील, वॉलरस। दीज एनिमल्स आर फाउंड इन पोलर रीजन। इनकी बॉडी पे बहुत थिक फर होती है, जैसे पोलर बेयर है, वो थिक फर उनको दैट फर एक्ट लाइक अ स्वेटर, जैसे हम ठंड में स्वेटर पहन लेते हैं, ठीक है, वी वेयर अ लेयर ऑन आवर बॉडी, तो ताकि हमको ठंड नहीं लगे। सिमिलरली polar bear has fur on its body, so that that fur protects polar bear from extreme cold of polar region, okay। So animals, यहाँ पे क्या लिखा है, they covered with animals living in such habitat have thick coat of fur. You can underline this. Ma'am, video is cracking. Coat of fur. You can underline this. And you can also underline the examples. Rupinder ma'am.
You can also underline the examples of animals: polar bear, Arctic fox, seal, walrus. ओके, अंडरलाइन दिस. आपको ये लर्न भी करनी है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एनिमल्स हैं. नेक्स्ट इज ओशंस एंड सीज. और यहाँ पे देखो बच्चे, आपको एक बात समझनी है. व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर बॉडी, वी टॉक अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडी. इट इंक्लूड्स sea, can include ocean, it can include lakes, streams, or waterfalls, all these water bodies. Okay, but when we talk about marine water, it means we are talking about those water bodies that contain salty water. ठीक है, salt water कहाँ पे हो जाता है? ocean and seas में. जो बाकी है जैसे लेक्स है, रिवर्स है, इनमें फ्रेश वाटर होता है. इज दैट क्लियर? सो मरीन वाटर इज वाटर ऑफ सीज एंड ओशंस. ओके, सो ओशन और सी में जो एनिमल्स रहते हैं, those animals cannot survive in fresh water, and जो एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं, those animals cannot survive in sea water. ठीक है, because their bodies are designed in such a way so that they can absorb more and more salt. So let us talk about marine water, marine habitat. ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे marine habitat लिखा है ना ब्रैकेट में, you can underline that. उसको आप underline करो और वहां पे लिखो salt water bodies, salty water bodies लिखो. ठीक है, ताकि आपको याद आए कि जहाँ पे मरीन है, जो सीज और ओशन है, उसका पानी सॉल्टी है. ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स लिव देयर? एनिमल्स लाइक फिश, स्क्विड्स. अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताती हूँ. व्हेन आई से फिश की थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज हो सकती हैं, बहुत टाइप की होती है फिश. ओके, हमने कलेक्टिवली उसको बोल दिया है कि फिश. So some type of fish can live in marine water and some type of fish can live in fresh water. Same in the case of squid, same in the case with octopus. ठीक है, इनकी भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, राइट? तो आपने ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि फिश हमने वहां भी लिखा है, फिश हमने यहाँ भी लिखा है. ठीक है, क्योंकि फिश की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स तो आपको भी पता होंगी. यहाँ पे लिखा देखो, गोल्ड फिश लिखा है, बच्चे ने लिखा, पफर फिश लिखा है, एक स्टार फिश होती है, एक शार्क होती है. शार्क, you are not audible. ठीक है, सो देयर आर नंबर ऑफ फिश, बहुत सारी स्पीशीज है फिश की. ठीक है, ओके बच्चे, ठीक है, मुझे पता चल गया आपको बहुत सारी पता है. ओके, सो नेक्स्ट इज, ये जो एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, इनकी बॉडी की एक स्पेशल फीचर होती है that you studied in class 4 also. That feature is the streamlined body shape. Streamlined body shape. Who will explain? I want anybody of you to explain this. Who would like to explain? Bhumika? Bhumika? Yes, ma'am. Ma'am, gills. Yes, Bhumika, बताओ. What is Ma'am? body? Yes, ma'am. मैम आपकी वॉइस मुझे ऑडिबल नहीं है. Okay, Misbah. Misbah, what is streamlined? Ma'am, streamlined body is a body which is, ma'am, streamlined body वो body होती है मैम जिसकी शेप ऐसे लंबी सी होती है मैम, ताकि वो बॉडी को काट के आगे जा सके. Yes, it is narrower at the corner. ठीक है, बहुत नैरो होती है, कॉर्नर में बहुत नैरो होती है, जैसे फिश की शेप है, जैसे एरोप्लेन की शेप है, जैसे बर्ड्स की शेप है. ठीक है, वो कॉर्नर पे बहुत नैरो है, जैसे वो पीछे जाते हैं वाइड होते हैं. ओके, दे आर Ma'am, you are not audible. and narrower at the corners so that they can cut air or water. ठीक है, जो वाटर बॉडी है
वाटर बॉडी में है उनकी भी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, जो एरियल एनिमल्स है उनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होती है, क्योंकि उनको एयर को कट करना होता है और वाटर एनिमल्स को वाटर के फ्लो को कट करना होता है, सो दैट दे कैन मूव इजीली। कुछ फीचर्स है फिश की जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट एंड नाउ वी विल मूव फर्दर टू द फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर में क्या क्या आ गया, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, इनका वाटर होता है सॉल्टी नहीं होता। ओके, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स दिखते हैं, फिश, फ्रॉग्स, स्लैमेंडर्स एटसेट्रा। ठीक है, कुछ एनिमल्स, मैम, यस मैम, एक्सक्यूज मी अनु मैम, मैम ये रिपीट ही करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है बच्चे भी फिर से मैसेज, यहाँ पे थोड़ी आपकी आवाज कट गई थी फिर से मैम। ओके 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 मैम। So, बच्चा, I was talking about freshwater. Freshwater bodies. Freshwater bodies include rivers, lakes, ponds and streams. जिनका water fresh होता है, इनका water continuously running होता है। pond तो man-made भी होते हैं, ठीक है। तो इनका जो water है running होता है और fresh होता है and it is potable. Potable is जिसको हम drink कर सकते हैं, okay? Bhargavi, it is pond, not pound. Pound is something else. So, कुछ एनिमल्स हमने ऐसे भी किए थे जो एनिमल्स लैंड पे भी रहते हैं और वाटर बॉडी में भी रहते हैं, बट those animals are called, but we call those animals that can live in water as well as on the land. Yes, Angel, very good. Yes, Tanishka, frog is an example. Animals are called amphibians. Excuse me, ma'am. हर्षिता, लैमेंडर एक एनिमल है, स्नेक जैसा होता है, बहुत बड़ा होता है स्नेक से। Ma'am. लगता Ma'am. Ma'am, stream. स्ट्रीम्स ऐसे रिवर्स होते हैं जो बहुत नैरो होती हैं, ठीक है, और में जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज्यादा होता है। वाटर बॉडी Ma'am, voice is not audible. लक्षिता बेटे स्टॉप अनम्यूटिंग योरसेल्फ, सिर्फ ये कहने के लिए बच्चे आपको अनम्यूट कर रहे हो, उससे भी डिस्टरबेंस ही हो रही है बेटे। देखो, स्ट्रीम्स ऐसी वाटर बॉडीज होती हैं जो रिवर से काफी नैरो होती हैं। रिवर थोड़ी वाइड भी हो सकती है, स्ट्रीम्स नैरो होती हैं, ठीक है, और इनमें वाटर फ्लो बहुत फास्ट होता है स्ट्रीम्स में। ओके, है ये वाटर बॉडी ही। सो एनी एग्जांपल ऑफ एम्फीबियंस? एनी एग्जांपल ऑफ एम्फीबियंस? फ्रॉग, और भी पढ़ा था आपने, टोड्स होते हैं, स्लैमेंडर्स आर आल्सो एम्फीबियन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, यस। Okay, so on the page number 64, open page number 64. Next topic is adaptation in animals. Okay, so adaptation, this is we have already discussed in the previous class, है ना, हमने किया था, मैंने आपसे भी डेफिनेशंस पूछी थी और बहुत अच्छे से समझाया था। बट इज अडेप्टेशन, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सो एवरीबडी प्लीज लिसन। नहीं एंजल, स्लैमेंडर नहीं, क्रोकोडाइल की जैसे 4 लेग्स होती है, स्लैमेंडर की भी 4 लेग्स होती है। स्लैमेंडर्स साइज में छोटे होते हैं क्रोकोडाइल से बहुत, उनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते, स्लिथरी सी बॉडी होती है उनकी, ठीक है। क्रोकोडाइल की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, स्लैमेंडर की बॉडी पे नहीं होते। So listen to me very carefully. Adaptation is the adjustment of any organism
with its environment. ठीक है, अब वो एडजस्टमेंट करने के लिए क्या क्या कर सकता है? उसके बॉडी ऑर्गन में कोई चेंज आ सकता है, उसके बॉडी के फंक्शन में कोई चेंज आ सकता है, बॉडी फीचर्स उसकी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, उसके बिहेवियर में चेंज आ सकता है. सो ये सारे एडजस्टमेंट जो वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए करता है, these adjustments are known as adaptations. Okay, so different types of animals can show different type of adaptation. यहाँ पे adaptation से पढ़ेंगे, and the first thing that we are going to study here is the body covering of animals. Okay, body covering means जो जैसे हमारी स्किन है ना, स्किन हमारी बॉडी को कवर कर रही है, राइट? ऐसे ही एनिमल्स, सारे एनिमल्स की स्किन नहीं होती हमारे जैसे. कुछ एनिमल्स के स्केल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स के फेदर्स होते हैं, कुछ के शेल होती है. सो हम इस टॉपिक में वो सारा पढ़ेंगे. ओके, सो बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल क्या होती है? बॉडी कवरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी कवरिंग हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही है, बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं आने दे रही है, एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट्स आवर internal organs from the dust, from heat and the harsh environment of surrounding. Okay, so the first type of body covering that we are going to study here is scales. Scales कौन से animals के होते हैं? You will give your answers in the chat box. What type of animals have scales on their body? Snakes, fishes, very good. Crocodile, very good. Lizard, yes. Reptiles, yes. Bhavik, lizards, snakes. Okay, now I'm getting repeated answers. Very good. So nice birds, tortoise के scales नहीं होते. Okay, so fish, snake, lizard, crocodile, alligator, these are some animals that have scales on their body. ठीक है, और ये ऐसे नहीं है कि सब एनिमल्स की बॉडी पे स्केल है, तो स्केल भी सेम ही तरह के हैं, इनके स्केल भी डिफरेंट टाइप के हैं. फॉर एग्जाम्पल, फिश लिव्स इन वाटर, राइट? तो फिश के स्केल डिफरेंट होंगे एलिगेटर से. ठीक है, एलिगेटर के स्केल्स डिफरेंट होंगे स्नेक से. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव अडेप्टेड different types of scales on their body according to the environment in which they are living. Okay, so first of all we will talk about fish. The body of fish covered with the layers of flexible. देखो, जब फिश स्विम करती है, ठीक है, उसको कभी टर्न लेना होता है, ठीक है, स्विम करना होता है, तो टर्न लेने में अगर उनके जो स्केल्स है वो स्टिफ होंगे, हार्ड होंगे, तो वो टर्न कैसे करेगी, है ना? तो उनके जो स्केल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं. ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप होता है, ठीक है, एक के ऊपर एक आया होता है. वेट होते हैं एंड स्लिमिंग होते हैं, स्लिपरी से होते हैं. ये फिश को जैसे हम थोड़े लंबे टाइम के लिए अंडर वाटर में रहते हैं तो हमारी स्किन कैसे हो जाती है ना, बिल्कुल पतली पतली सी हो जाती है ना. हमारी जो टिश्यूज है वो बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाती है, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है इफ यू स्पेंड a long time in water, right? But fish का कभी ऐसे नहीं होता, because fish के जो scales हैं वो उसकी body को protect कर रहे हैं, so that its body does not get damaged due to water. ठीक है, उसकी body को कोई damage नहीं हो. So जो further reptiles हैं आप यहाँ लिख भी सकते हो. अब देखो, ये मैंने आपको कुछ ऐसा फैक्ट बताया है ना जो यहाँ पे नहीं लिखा, तो आपने लिखा बुक में. लिखना चाहिए ना आपको कि बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं वाटर के से होने वाले हार्म से स्केल्स. आपको लिखना है. सो जो कुछ रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में क्या क्या आते हैं? अब स्नेक्स आ जाते हैं, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, लिजर्ड्स, जिनकी बॉडी बहुत क्लोज है ग्राउंड से, उनकी बॉडी बहुत क्लोज है. एलिगेटर, क्रोकोडाइल के जो लेग्स है कितनी छोटी छोटी होती हैं, उनकी बॉडी बहुत नियर होती है.
स्नेक तो स्लीथर करता है, स्नेक स्लीथर्स। स्लीथर क्या होता है, बिल्कुल सिल सिल करके जो वो उनकी मूवमेंट है उसको स्लीथर कहते हैं, ठीक है। स्नेक की तो लेग्स होती ही नहीं, राइट। सो उनकी भी बॉडी पे स्केल्स है। कुछ एनिमल्स की बॉडी पे स्केल्स बड़े हॉर्नी से होते हैं, जैसे आपने कैमेलियन देखा होगा, कैमेलियन की पिक्चर देखी होगी, स्पाइन जैसे स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पे, उनको हॉर्नी स्केल्स कहते हैं। एलिगेटर की भी बॉडी पे स्पाइन जैसे होते हैं स्केल्स, ठीक है। तो वो भी क्या होते हैं, हॉर्नी स्केल्स होते हैं। So the horny scales on the body of reptile help them to prevent water loss. Underline this line. Horny scales बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। फिश के स्केल्स वेट होते हैं, स्लिमी होते हैं। रेप्टाइल्स के स्केल्स हार्ड होते हैं ताकि उनकी बॉडी से वाटर लॉस कम हो, ठीक है। अंडरलाइन दिस लाइन। मैम कौन सी लाइन अंडरलाइन करनी है? Scales on the body of reptiles help them to prevent water loss. It is a fourth line in the passage of scales. Okay, so ये हो गया इनका फंक्शन। फिश के स्केल्स का फंक्शन क्या है, वो उसकी बॉडी को डैमेज होने से बचाता है वाटर से एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। हॉर्नी स्केल्स का फंक्शन क्या हो गया, जो एलिगेटर क्रोकोडाइल पे है, कि वो उनकी बॉडी से वाटर लॉस को कम करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्केल्स ऑफ स्नेक्स। आपको पता है जो स्नेक जब मूव करता है वो कैसे मूव करता है, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा आपने, ठीक है। वो ऐसे मूवमेंट करता है, उसकी मूवमेंट को कहते हैं स्लिथरिंग, ठीक है। एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ स्केल्स। स्केल्स उनकी बॉडी को ड्रैग करते हैं अगेंस्ट द फ्लोर, अगेंस्ट द ग्राउंड, एंड वो आगे अपनी मूवमेंट करते हैं, ओके। और स्नेक्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो अपनी अपर स्किन है, नीचे उनकी न्यू स्किन आ जाती है, जो बिल्कुल अपर वाली स्किन है वो शेड कर देते हैं, उतार देते हैं। ये आपने फोर्थ में भी पढ़ा है। दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ स्किन by snake is known as molting. You can also underline this. This is the definition of molting. Snakes shed their skin periodically to replace it with a new one. Periodically means after a particular time. Okay? जब वो अपनी स्किन उतार देते हैं, उनकी न्यू स्किन आती है, this process is known as molting. Yes, Japnoor, very good. Lovely. Turtle lives in water. Tortoise live on land. टर्टल के पैडल्स होते हैं, फीट नहीं होते। टॉर्टस के फीट होते हैं। टॉर्टस साइज में टर्टल से बड़ा होता है, ठीक है। टर्टल स्विम करते हैं, टॉर्टस वॉक करता है बहुत धीरे धीरे, राइट। So attendance form is there in your chat box. You can fill that attendance